What's happening, people? For today's podcast, I have with me Prakhar Gupta, aka Prakhar K Pravachan on Instagram or YouTube, a philosopher, thinker, and most importantly, someone who will tell you what the actual problem is. All right. So first of all, Prakhar, I think that this is my perception of you. So I think from meditation, you have extreme awareness. You understand what you study, actually, what the society is talking about, and 99.5% of people follow what to think, right? Which they get from other people's opinion, which they get from other people's opinion. You, on the other hand, because you're extremely aware, probably because you meditate a lot, you read a lot, and then you use that data to analyze what's happening in the society. एंड वहां से आपका मेन कंटेंट आता है, आपको पता लगता है कि अच्छा ये क्या बकवास बात कर रहा है, ये गलत है, एंड दैट इज वेयर योर कंटेंट लाइज एंड देन यू आर ब्लंट अबाउट इट. सो हाउ राइट एम आई? पहले तो यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट द डिस्क्रिप्शन एज वेल. मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कोई मेरे को फिलोसोफर बुलाए. ठीक है, तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट. नहीं यार, मतलब देख, at the end of the day, people do not recognize this, maybe, and I mean, I don't expect people to. That's not their job. It is my job to recognize where I'm from. And मैं प्रखर के प्रवचन पे I'm only able to do the symptom of what I could do in a book. ठीक है, I have a feeling, and I may be very stupid and very wrong about this feeling, but I think I have the mettle to be a serious philosopher. If not a serious philosopher, at least a philosopher of some merit. और मैं eventually life में वो pursue करना भी चाहता हूँ. I want to write sincere philosophy. ठीक है, so this is a means to an end, and I dared never call myself a philosopher too openly. मैंने कभी हिम्मत नहीं करी, क्योंकि मैं कौन होता हूँ अपना बाजा बजाने वाला. बट किसी ने आज बुलाया तो मेरे को अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच. होपफुली अगर तू मेरा सिम्टोमेटिक काम एंजॉय करता है, तो तू मेरा जो कोर एसेंस, जब मैं वहां जाऊंगा, when I go down to that place and I start talking about where it comes from, because if you've noticed, I haven't ever delivered, let's say, what is the unified theory of Prakhar's ideas has never been out, है ना? When I try and do something like that, hopefully you will enjoy it. So, and this is an answer this is something that is peripheral to the answer. So, meditation. Interestingly, now that you asked me this question, आज 10 जुलाई है ना, तेरे यहाँ 11 हो गई होगी. हाँ. मैं 11 जुलाई 2019 को मेरे को पहली बार मेडिटेशन क्या है का समझ आया था. मैं 11 जुलाई 2019 को विपासना में घुसा था. Okay. पर मेरी जंग विपासना से पुरानी है. विपासना जाके मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे जिंदगी के पहले 5-6-8 साल की जंग कितनी बेकार थी. जो मैं मेडिटेशन से डायरेक्टली सीख सकता था, वो मेरे को वो सब स्किल्स, वो सब टूल्स दे देती. बट उससे पहले भी मैं कुछ कर रहा था, और वो मैं कर ये रहा था. आई वाज इन एब्सोल्यूट डिफाइंस ऑफ अथॉरिटी. ओके, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी एक बंदे की बात सुन नहीं सकता, क्योंकि मेरे को भरोसा ही नहीं कि उसके सच मेरे सच होंगे. तो मेरे को तो किताब देगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता मैं डिसएग्री ना करूं. और इसलिए नहीं क्योंकि मैं सही हूं और वो गलत है, बट मैं इन चीजों के बारे में इस तरीके से सोचता हूं और वो इन चीजों के बारे में इस तरीके से सोचता है. और ऐसा नहीं है उसमें कुछ सीखने में भी इम्पेडिमेंट आता है. तो व्हाट आई वाज, जो मेरी जंग रही है ना, दैट जंग स्टार्टेड समटाइम बैक इन मिडिल स्कूल, 3rd, 4th, 5th ग्रेड के आसपास, वेयर द ऑप्शन वाज ईदर रट लो या समझ लो. तो मैंने रट लो को लात मार दी, और मैंने समझ लो के साथ बहुत ज्यादा इश्क लड़ाना शुरू कर दिया अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए. ठीक है, और तो एवरीथिंग दैट हैड टू बी अंडरस्टूड, फ्रॉम व्हाट अ टिश्यू इज in 7th grade biology to what electromagnetic fields are in 9th grade physics, had to come from first principles. कि अगर मैं भूल जाऊं ये सब कल को पेपर देते हुए, तो मैं खुद यहां तक कैसे पहुंच सकता हूं? Right. How do I go from point A to point Z by myself? And the strongest reflector of problems, the strongest corpus of problems I had once school was over, was my life. I hated my life doing chartered accountancy. I was never fond of it. So there were troubles there. और जब तुम्हारे पास लाइफ में मीनिंग पर्पस नहीं होता, तुम ट्रबल्स क्रिएट करते हो. So I would fight in my relationship, for instance. I would fight with my parents, for instance. Right? I would have ideas that would make me feel safe because I was not happy being where I was. उन सब के साथ खेलने में, with the same first principle approach, I developed a language of my own. I developed a language of my own to understand the world, and I think that is all a philosopher needs. Everything else is bullshit. ठीक है? तो meditation and self-awareness came later. Meditation के through self-awareness came later. पहले it was a lot of verbal processing. It was a lot of talking to people. It was a lot of idea jousting. लोगों से लड़ाई कर रहा हूँ ideas को लेके. It was a lot of keeping yourself. For some reason I picked up this principle that if you're not honest, अगर तुम शांति चाहते हो तो सच पे निशाना लगाओ. Right? So I had to be honest with myself. I had to be very honest with myself. I will not spare myself a beating where I deserve one. Yeah. यहाँ गलत तेरी insecurity kick in कर रही है.
ये तेरी इनसिक्योरिटी है ना? तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, with the honesty to find the right answer and with the intent to find only your answer, you move along the path of constructing a world map for yourself very very quickly. और फिर तुम किताबों पे जाते हो और फिर तुम बोलते हो अच्छा अरे फ्रॉइड भी ऐसी कुछ बात कर रहा है और रिफाइंड फैशन में, एंड देन यू लाइक अच्छा अब मैं इसको डेवलप कैसे कर सकता हूं, क्योंकि यहां तक तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था, अब क्या दैट इज वेयर आई एम इंटरेस्टेड. तो प्रखर के प्रवचन इज अप अंटिल, एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक मेरे को बुकिश नॉलेज है, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस तक तुम्हें लेके आया हूं. एज एंड व्हेन आई एम अलाउड टू प्ले माय गेम आई विल वांट टू टेक यू फर्दर, एंड दैट इज व्हेन probably this recognition as quote unquote a philosopher, again not trying to मैं अपना बजाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, probably might start coming more frequently. Correct. ठीक है. So सबसे पहले तो like this question is from your one of your videos, and I think this was the 6th or 7th post. Tell me something about yourself. About myself? Yeah. And I'm especially looking at the first word that you used. Right. No, I know what you're doing. That is no surprise to me. Let me try and see. Yeah. I think what you're asking is what is it that Prakhar values about himself? What is it that he would want people to see him by, right? 100%. And I think it is what is organically happening is that I want people to understand the paradox that I am. ठीक है, बहुत early on. Bro, तूने मेरे को कभी गाली देते सुना है? सुना. इतनी सारी वीडियोस देखी अभी. हाँ भाई, मतलब जब मैं गाली देता हूँ ना, और मैं बहुत गंदी गालियां देता हूँ, और वो गाली देने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं तेरी किसी के साथ कुछ ऐसा कर दूंगा, वो नहीं कह रहा मैं. वो एक दैट इज द पार्ट ऑफ मी दैट, एक सेकंड रुक, यहाँ नहीं है वो किताब, तूने नहीं यहाँ नहीं है, वहां कहीं है, फ्रॉइड की डिस्कंटेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ी है? नहीं. The idea being कि when you interact with society you have to trade off some of your individual desires, और वो इंडिविजुअल डिजायर्स का एक कॉम्बिनेशन जो मेरे को ट्रेड ऑफ करना था टू बी सोशली एक्सेप्टेबल, जो हम सबको करना पड़ता है इन अ फ्रॉइडियन वे, वाज दिस पार्ट, गालियां देना, नशे करना, सेक्स करना, फलाना ढिमका, XYZ ABC. ठीक है? तो मैंने फॉर सम अनकॉन्शियस रीजन एज अ चाइल्ड आई प्रोसेस माय सेल्फ इन दीस टू वेज, वेयर देयर वाज द डिजेनरेट डिविएंट एंड देन देयर वाज द सोशली एप्ट अडेप्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन. तो मैं अगर अंग्रेजी में बात करना शुरू करूंगा तो बोलेगा यार वाह, और मैं समझदारी की बात करना शुरू करूंगा तो बोलेगा यार वाह, बट तू मेरे को मेरे दोस्तों के साथ मैं 1 घंटे बाद गेमिंग कर रहा हूँ सुन के देख, तू बोलेगा भाई नहीं करना, बात ही नहीं करनी इससे. तो I want people primarily to understand that paradox, and I don't expect them again to do that because अभी तक मैंने वो सेकंड साइड डालनी इतनी शुरू करी नहीं है. अभी तूने मेरा देखा होगा एक अर्नब गोस्वामी के साथ मैंने एक वो अर्नब गोस्वामी वाला. The point is bro, कुछ फिलॉसफी ऐसी है जो सीरियसली नहीं करी जा सकती, वो ह्यूमर के थ्रू करनी पड़ेगी. और उसके लिए मैं अब एक वो जो पैराडॉक्स का जो सेकंड हाफ है ना, the absurdist in me, that is going to come out. So there is a sincere element in me and there is an absurd element in me, and I want people to understand, and hopefully they have their definition of the same as well, recognize, understand and fall in love with the two. So that is my ultimate performance. In some sense I prefer the absurdist in me more than I prefer the sincere in me. When I open Instagram, I don't go to Prakhar ke pravachan, that I visit. I go to Prakhar, my original profile, because that is who I truly am, the absurdist. Yeah. Got it. So थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहूंगा. Like I personally am pretty involved in politics, and nationalism बोल रहे कुछ भी बोल दो, how to overcome the information overload first of all. You know, पहले to be very honest, तेरी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोल. Yeah. So moving towards the political side of things, I was a BJP supporter back in 2019, right? And that was because मेरे को वो वाला side of उनका marketing दिखा जिसमें मेरे को लगा था okay BJP बहुत कुछ कर रहा है, BJP ये कर रहा है, BJP वो कर रहा है, right? And then there was a information overload कि जब कुछ भी गलत भी कर रहा है तो मेरे को लगता था कि नहीं BJP सही कर रहा है, because मैं BJP का content देख रहा था, right? And then there was the political bias. तुम जैसे ही कांग्रेस का नाम लेते हो तुम सीधा बोल दो कि यार गांधी तो गधा है, इसको वोट करें. मोस्ट ऑफ द पीपल जिनमें पूछता है यार तुम बीजेपी को वोट क्यों करते हो, तो बोलते हैं ऑपोजिशन और है ही कौन, राइट? सो इतना इंफॉर्मेशन लोड है, इतना बायस है, कैसे इसको लाइक हाउ डू यू ओवरकम दिस? यार मैंने ये क्वेश्चन अभिनंदन सेखरी के साथ 2 अपने पॉडकास्ट पे टाइप करने की कोशिश करी है कि भाई मैं हाउ डू आई रिस्टोर सेंस मेकिंग इन आवर सोसाइटी. Exactly. That is the ultimate approach, right? How do you restore the art of putting facts together in society? And one of my doubts is that we probably never had it. One of the doubts is कि एक टाइम पे गंगोत्री से गंगा इतनी पतली बहती थी कि उसी को हम गंगा कहते थे. अब क्या 25 नहरें बह रही हैं, वो सारी गंगा है, ठीक है?
But there is almost no clear way to know any of that. What is clear though is something that you said. And here is where a good, interesting psychoanalytical picture on society becomes important. दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब यही बोल रहे हैं कि हम मोदी को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि गांधी चुतिया है? तू मेरे को बता, सब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब एक साथ, सब क्यों? क्योंकि वो बात, उस बात में एक लेवल का मेरिट है, इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ प्रोपेगेंडा है वो। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बात रिकॉग्नाइज नहीं करती कि वो लोग जनता की, आवाम की बात अब नहीं सुन रहे हैं, नहीं ये मोदी का, अबे भाई कंसीड करना सीखो डिफीट्स, पॉलिटिकल प्रोसेस। अबे इंसान, हमारी सुनो ना, हमें एक अच्छा ऑपोजिशन चाहिए ताकि रूलिंग पार्टी बेटर बने, ताकि हमारी सरकार बेटर बने। देख भाई, मैं तेरे को एक बहुत सिंपल बात बोलता हूं, मैं अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस डिस्कस करने को तैयार हुई नहीं माइक्रोफोन पे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग विद पॉलिटिक्स इज इनक्रेडिबल। आई डोंट डू दैट, राइट? मैं प्राइवेटली, तू कैमरा ऑफ कर दे, हम बात कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। बट हियर इज व्हाट आई विल से, if the Indian National Congress is not willing to listen to its people, it deserves no place in leadership right now. I have a friend who I have come to respect मेरे Facebook पे, and he's a very active Congress का कुछ सिस्टम है उसका, ठीक है? तो वो बात करता रहता है, and we have to have a conversation once I get to India about why he still supports Rahul Gandhi. Because I was like, भाई मैं तैयार हूँ कांग्रेस की सुनने के लिए, तुम सचिन पायलट को लाओ तो, फॉर इंस्टेंस, राइट? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होता है। अगर तेरे को जरूरत पड़ रही है राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के लॉयर बनने की, और को समझाने के लिए, और तेरे को अगर ये सब के लिए करना पड़ रहा है, तो भाई अपनी उसमें भी झांक के देखो, कहीं ना कहीं छेद है। And the point is, for whatever want or reason, Rahul Gandhi is a defeated political man, and he may be repurposed. He may be a great guy for all I know, and he may have a role in politics. But leadership, as an individual quality, demands that you step back and fuck off. What we are seeing now is a post Sonia Gandhi India. Yeah. The fear of the white ruler. जब पहली बार सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली थी ना, मेरे को याद है, मैं छोटा था, डर था, गोरे फिर से अब we live in a very different India than we did when I was growing up. And I'm not saying it's better or worse. It has its own problems. It has its own bloody problems. Freedom of speech, which is my primary political charge, दोनों सरकार represent नहीं करती freedom of speech. Both of them are distortive of speech. ठीक है? तो problems अभी भी हैं. लेकिन तूने रंग दे बसंती देखी है? देखी है। कब देखी थी तूने? अभी I think 6 months पहले देखी। मुझे पता है, मैं अभी 10 दिन पहले देखी है। ठीक है। हाँ, मैंने 10 दिन पहले देखी है। मैं वो मूवी देख के पता क्या रियलाइज कर रहा था, जब मैंने पहली बार देखी थी ना, तो दैट वाज सो ऑब्वियस कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ऐसे स्कैम में इन्वॉल्व हो। अब वो चीज इतनी ऑब्वियस नहीं, अब इस्लामोफोबिया पिक्चर बनेगी, वो बात ऑब्वियस है मेरे लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि इस्लामोफोबिया एज अ कंकरेंट टॉपिक, थीम, जो भी व्हाटएवर। बट उस टाइम पे हमारी कल्चरल साइकी के डाउट्स ये थे कि हमारे लीडर्स हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, और वो सेम चीज उस मूवी के 8 से 10-15 साल बाद भी है। और ये बात अगर कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं है, तो भाई मैं what do you expect? मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि मोदी अपने आप में पॉपुलर नहीं है, पर राहुल गांधी की चुतियापे की वजह से उसको डबल पॉपुलैरिटी मिली हुई है, और ऑपोजिशन पार्टी इन अ गेम थ्योरी मॉडल। भाई अगर तू और मैं लड़ रहे हैं, कितनी ऑब्वियस बात है यार, यू नीड अ रीस्ट्रक्चरिंग, यू नीड टू गिव मी अ सॉलिड ऑपोजिशन। अरविंद केजरीवाल करता है ना सॉलिड ऑपोजिशन, जीतता भी है इसलिए दिल्ली में। मैं ये नहीं कह रहा वो भी अच्छा है कि बुरा है, बट एक कंपेटिटिव लैंडस्केप में सिर्फ अगर मैं कंपेटिटिव एट्रीब्यूट्स की बात करूं, तो अरविंद केजरीवाल कंपेटिटिवली ठीक खेल रहा है, और उससे फर्क पड़ता है। बीजेपी हैज टू थिंक, एंड दैट्स ऑल वी नीड अ पीपल टू बिकम बेटर, बिकॉज हमारी फोर्सेस जो है, हमारे मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज, ये जो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज की फोर्सेस कंपटीशन पे बेस्ड है ना दोस्त। You have to be good competition for better competition to emerge, for better products to emerge, and that won't happen if you are stuck to your ego. बिल्कुल, yeah. इसी पे बेस में मेरा थर्ड क्वेश्चन है, sense making system have collapsed, right? You mentioned this in your video itself. So and like I personally feel ये होता है because the power is in the wrong hands. There is information overload and the one side bias, obviously. So on an individual level, how can you overcome this? भाई मैं ना बड़ा pragmatist हूँ लाइफ में, ठीक है? When you become anti-ideological, and this is something, read this fellow, G.K. Chesterton, In Defense of Sanity, इसके essays हैं, G.K. Chesterton, ठीक है? He had a quote, something to the effect of, the modern cynic is prone to every two-bit unsophisticated lie that he's told.
right? वो इतना cynical हो गया सच से कि वो झूठ में किसी भी चीज में मान लेता है. The point being, I'm a pragmatist, and what a pragmatist does eventually, if you listen to him carefully, is he will bring you to reality. I mean, which isn't any good because he doesn't tell you how to improve things, right? So I will tell you that it is not that bad people have these systems in power that this is happening. The fact is that these systems, their models, their architecture is corrupt. So if you run an information processing system, information dissemination system that is based on ad revenue from viewership and eyeballs, they will optimize for viewership and eyeballs, not truth. You see what I mean? So the reason why I go after Arnab Goswami is not because Arnab Goswami is Arnab Goswami से मैं personally betrayed feel करता हूँ. मेरा बचपन का जो प्रखर है वो, क्योंकि मैं इसकी एक time पे मैं I was proud of him, and now I cannot just stop being disgusted. He's my TikTok, he's my cringe. ठीक है? But the point is कि what we are failing to recognize, and I think again I never speculate about this, bro. This is the philosophical part of me maybe, but I think all these protests that have been happening, including BLM and all these, is an understanding that truth is a mystery in our times, and there is no way in hell that we will fix it without reinventing our systems, and technology has to step in and find the systems to incentivize truths for media corporations to work properly. That is the position we are in. So as individuals, हमारे पास छाट कुछ नहीं है करने को, except अपनी आंखें और कान उन जगह से निकाल दो जहाँ पे सिर्फ तुम्हें कचरा बेचा जा रहा है as a business model. ठीक है? तो if sense making is absent, here is what you need to do. You need to, क्योंकि यार at the end of the day societal level पे advice नहीं दी जाती, वो नल्ले लोग देते हैं societal level पे advice कि society को ये करना चाहिए is a weak man's attempt at solving a problem. A strong man's attempt at solving a problem is individual को क्या advice मिले जिससे societal वो impact जाए. That processing from one to a many is important. और वो बहुत difficult काम है because people don't scale linearly. एक इंसान एक काम कर रहा है और सारे इंसान एक काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो 1 का 1 मिलियन हो गया, वो कुछ और ही चीज बन जाती है, right? So the point being, stop listening to Arnab Goswami, stop listening to Ravish Kumar, stop listening to anybody जिसका ad model जो है is based around, जिसका revenue model is based around your viewership. I think that makes sense. Switch to alternate media. काफी लोग हैं, मैं इनफैक्ट ध्रुव राठी का भी नाम ले लूंगा इसमें. प्रॉब्लम ये नहीं है कि ध्रुव राठी सही है कि गलत है, प्रॉब्लम ये है कि उसके जहन के अंदर जो काम करने की मोटिवेशन है वो तुम्हें बेच के पैसा कमाना नहीं है, वो अपना सच बोलना है, चाहे उसका सच गलत हो, चाहे उसकी रिसर्च बेकार हो. तो स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन. और फिर जब तक कि हमारे लीडरशिप में एडल्ट्स आके कुछ नहीं करते ऐसा कि हम सब वापस भरोसा कर पाए उन सब पे, तब तक अपने पे भरोसा करो, अपने क्लोज सिस्टम्स बनाओ और वहां फिगर आउट करो सेंस मेकिंग. इससे फेसबुक का भी याद आया, कितने लोगों ने बॉयकॉट किया है. लाइक फेसबुक आल्सो देयर एड रेवेन्यू इज ऑलवेज आरओएस देना है कंपनीज को. 100%. तभी सोशल मीडिया को ट्रस्ट मत करो. सोशल मीडिया इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोशल मीडिया हाँ ब्रो, वो ऑल सेंसेशनलिज्म इज द बिजनेस. भाई तेरे को क्या लगता है अर्नब गोस्वामी बेवकूफ है क्या? वो भी तो बिजनेस चला रहा है ना अपना चिल्ला के. बट अब उसने उस चिल्लाने में ये भूल गया कि मेरे को सच भी बताना है लोगों, एंड दैट इज वेयर आई फील बिट्रेड. 100%. कुछ भी बोलो, लोग देख रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं तो पैसा आ रहा है. सही बात है. This makes a lot of sense, right? So coming back to like I want to move to the meditation part. So I have been meditating for like 8-9 months now, and मेरे को थोड़ा सा रिलेटेबल होता है जब मैं लोगों को देखता हूँ, समझ आता है कि चलो ये मेडिटेट करता होगा तभी ये समझ पा रहा है on a next level. But how do you get on the next level of meditation? I watched a lot of videos on advanced meditation, ये meditation, वो meditation, but मैं आज तक नॉर्मल वो ब्रीदिंग पे फोकस करना और गाने पे फोकस करना, एनवायरनमेंट फोकस करने से आगे बढ़ने में. So what do you personally recommend or do for going to the next level of meditation? Anybody who's trying to sell you an abstract dream, including myself, is a liar. Again, I'm a pragmatist, I'm a realist, right? तो मैं तो there is no divine transcendent state of meditation that you get for me. As far as I'm concerned, I haven't seen what Sadhgurus, for instance, or Osho's, for instance, what is that advanced meditation जहाँ पे तुम मतलब हमेशा के लिए forever खुश हो जाते हो. I don't think. मैं थोड़ा उससे ज़्यादा रियल हूँ. I believe in the idea of pain as a very solid guide along with awareness. So it isn't obvious to me what deep meditation looks like. What is obvious to me is हमारी consciousness की flexibility बड़ी massive है. हम realize नहीं करते. तूने कभी psychedelics किए हैं? नहीं.
ठीक है, जब तू साइकेडेलिक्स कभी जिंदगी में कभी, and I'm not condoning, I'm not saying do it please, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है, बिल्कुल बिल्कुल मत करो, भाड़ में जाए, प्रखर ने साइकेडेलिक्स की बात नहीं करी, बट when you read somebody who's done psychedelics, let's just put an arm's length distance, you realize कि जिस तरीके से तुम रियलिटी देखते हो ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, वो ऐसी है ही नहीं रियलिटी। तुम्हारे परसेप्शन की, तुम्हारे कॉन्शियसनेस की, जो the spectrum on which your consciousness can be is magnificent. And it changes with circumstance. So try not having sugar in your meals for 2 months and see what that does to your consciousness. And if that's one small step, but if you take it down to the extreme, and if you're silent for 6.5 months in Vietnam with Buddhist monks, your consciousness looks very different. In the moment, you're experiencing reality in a very, very different way. And so meditation, when done properly and in long, intense, extreme sessions, और ये सब वो सब जो भी मतलब समझ रहा है, the hard work around meditation, हाँ, so what happens is you start seeing reality very, very differently. ठीक है, तो ये 30 मिनट जो मैंने 30 मिनट का मेरा चैलेंज है नवल का by 2, क्योंकि मेरे को पता है लोग वैसे ही नहीं मानने वाले, 60 by 60 तो मैं क्या ही बोलूंगा, वहां पे तो तुम लोग you're only beginning to scratch the surface मेरे दोस्त, that's only people beginning to scratch the surface. जब तुम वाकई रियलाइज करने लगते हो ना कि तुम अपने आप में कितना कुछ हो, जब तुम वाकई ये रियलाइज करने लगते हो कि तुम कुछ भी कर लो, जो आएगा वो जाएगा, जब तुम अंदर से समझ जाते हो कि सब चीजें इंक्लूडिंग तेरे और तेरी माँ के आपस का प्यार is based around the idea that eventually there will be pain, you learn to make very unmotivated decisions for yourself. Then you are not motivated to have one or the other outcome. You're motivated to see what you want and then choose. तो अब मैं चूज करता हूँ अपनी मम्मी का प्यार, कोई बात नहीं, होगा दर्द जब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं उन्हें प्यार करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चूज करता फॉर इंस्टेंस अपने आईफोन से प्यार करना, क्योंकि भाड़ में जाए, वो आता जाता रहेगा। और इसी को तुम एक्सट्रीम में इमेजिन कर लो, एक्सट्रीम में, जो फाइट क्लब में वो बात है ना, the things you own end up owning you. Understand that psychologically. Eventually, when you own nothing in your head, nothing in your head owns you, and you become fluid. You become from one instance to another. You become an alive entity that watches the space of experience one instant to another, and nothing bothers you, and you just await death uske baad. But you are happy having that experience. You are content having that experience. अब ये बहुत मोटी philosophical बात है ना, ये मैं बहुत मोटे स्पिरिचुअल लेवल पे ले गया, और ये क्लियर नहीं होगी क्योंकि मेडिटेशन का पर्पस है एक्सपीरियंस से सिखाना, इंटेलेक्चुअली वो बात समझ नहीं आएगी. यू हैव नो इमेजिनेशन फ्रेमवर्क फॉर दैट इंटेलेक्चुअली, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. मेरे को पॉडकास्ट में सुनते सुनते इसको प्रोसेस करने में इतना टाइम लग रहा है. राइट. Coming back to lockdown, there are two type of people मैंने देखे हैं लॉकडाउन में. एक है who are now extremely grateful. पहले भले रो रहे होंगे, but after 3-4 months of lockdown in India, they are very very happy because they have realized कि वो जो rat trap है तुम्हारा बाहर का, उससे वो free हो गए. Because FOMO off हो गया. FOMO off हो गया. And because they are घर पे अटके हुए हैं, they have no one but themselves to focus on, right? And that has helped them achieve a lot. That वो 1-2 साल में जो नहीं कर सकते, वो उन्होंने 3-4 महीने में किया है. And then there is the opposites, जो सोच रहे थे मैं ये करूँगा वो करूँगा, but उनसे लॉकडाउन में घंटा कुछ नहीं हो रहा है. What is it like one thing that is difference between the two? What is common between the two is a more interesting question, wouldn't you say? No, I'm just kidding. But what is common between the two is them not realizing that this is all temporary. That infinity is in the moment. और ये एक spiritual continuation of the meditation trend थी. But ठीक है, let's try and see what could be different about these people, right? Exactly. Let's see. So there is one set of people who were upset initially but are happy now. Some people who were unhappy initially but are fine now. It's the process of adjustment, bro. It's the process of adjustment. It's the process of realizing all parts of your reality. Okay? So I think they're more similar than they're different. In the sense, when something like this hits you for the first time, what happens to you is you see the parts that you want to see. With everything, first impression is not the last, is probably the last impression, but is no information at all because you're seeing the parts you want to see. Yeah. So lockdown आया, the parts I want to see is thank God no FOMO. Yeah, thank God मेरे को बाहर नहीं जाना है. Thank God मैं अपनी family के साथ time spend कर सकता हूँ. Eventually you realize the dirty parts of it. On the other hand, some people initially कहते हैं यार अब घर बैठना पड़ेगा, fuck. Or eventually they realize the good parts of it too.
So the relative scales of their mood change and they report differently कि वो कितने खुश हैं और कितने unhappy हैं, है ना? Because you get exposed to all parts of reality. But the disease, the symptom in both of them are the same, is that they think this is the reality for too long. That's why जो expectation tie हुई ना, if you do not understand that this is a passing moment and this is the only moment allowed to you right now, you become indifferent. You're so grateful for the fact कि तुम देख भी सकते हो ये. और फिर जब ये वाली फीलिंग आ जाती है ना, जब मेरे को किसी चीज के साथ पसंद नापसंद नहीं है, तो मैं उसके बारे में डिसीजंस क्लियरली ले सकता हूँ. तो ये वो प्रॉब्लम है. मेजॉरिटी लोग जो, यार देख, मतलब ऐसा नहीं कहना चाह रहा मैं कि लॉकडाउन वाज नॉट अ बिग थिंग, ह्यूज, मैसिव, बट उसके सिर्फ लॉकडाउन एक तरफ टिक टिक कर रहा है और तुम्हारे दिमाग में अलग टिक टिक हो रही है उस वजह से. उसका रीजन ये है that you not made peace with the fact that you're real, that you live in the space that you live in, and that you will continue to live in your body in this fashion forever until you die, and everything that you experience in the meanwhile is temporary and was only allowed to you once, and so be grateful. That comes from meditating enough, or that comes from being close to death or something like that. But that is the general point. The reason, both difference ज़्यादा नहीं है यार. People are just realizing the reality. ठीक है, मैं तेरे से अभी मिला, मेरे को वो भी पसंद है. 4 दिन बाद तू मेरे को कुछ उल्टी सीधी बात बोलता है, मैं कहता हूँ भाई यार, now I'm exposed to all parts of your reality. Got it. Very interesting. Next is, do you biohack yourself? Like biohacking, like I feel that you do, but biohack करके आप अपने moods को change करते हो, अपनी productivity बढ़ाते हो. मैंने बहुत ट्राई किया यार. मेरा एक बहुत अजीज मित्र है यहाँ पे, Parveer Singh Sidhu. If you're ever listening to this, which I don't think you will be, shout out man. Thank you so much for being the influence that you've been on me. मैं कभी इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगा और प्रखर के प्रवचन इस बार. मेरे भाई जैसा है वो, ठीक है. और परवीर की जिंदगी का एक ही मकसद है, बायोहैक मैक्सिमस. ठीक है, परवीर की लाइफ का एक ही मकसद है कि मैं बायोहैक की कैसेट अपनी इसमें भरूं, मैं फुल पावर निकलूं. ठीक है. तो परवीर उसके अपने रीजंस थे वो करने के. He's very good. उसने अपनी सप्लीमेंट कंपनी स्टार्ट कर ली है. तो when Parveer and I used to live together, which was the first 1.5-2 years of me being at Columbia, मैंने बहुत बायोहैक किया and it has had great results. बट मेरे से यार होता नहीं है सारा टाइम. वो रूटीन जो है ना उसका बंदे का, कि वो सुबह उठेगा, पहले 25 गोलियां खाएगा, 18 इंजेक्शन मारेगा, वो मेरे से I can't keep up with that. तो what I do is some basic stuff like cold showers, fasting. ये तो मेरे basics हैं ही हैं, इनको मैं ignore नहीं करता. Eating clean, no sugar and stuff like that. कभी-कभी जब मैं परवीर के साथ, अच्छा मैं I'll experiment with nootropics of one variety or the other once in a while. मैं if I'm hanging out with Parveer, I'll do more than just that. वो तो मतलब carnivore, keto. मैंने keto किया बहुत टाइम, ठीक है, बायोहैकिंग के लिए. मैंने अभी हम लोग एक न्यूकाम नाम की एक चीज है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उसके साथ वो बड़ा फ्लिप सीन है ब्रो, बेटा टेस्टिंग में है. मतलब ऐसे हेडफोन लगा, तू एक वाइब्रेशन छोड़ता है और तू ऑफ, तू एक डेल्टा स्टेट में सीधा. सोच, ठीक है. वो अच्छा, वो तो पागल आदमी है. उल्टा पता है क्या करा उसने, पैर अपने एक वो पता नहीं कोई चीज उसमें अपने पैर डाल के उल्टा लटक रहा है आधे घंटे के लिए. तो उसके साथ ये सब करने में मजा आता है. उसने एक प्रॉपर मेंबरशिप पकड़ रखी है यहाँ न्यूयॉर्क में. वहां जा जाके नए नए तरीके ट्राई करता है वो बायोहैकिंग के. बट मैंने बहुत टाइम से नहीं करी है. पर मेरी अगर तू ड्रॉर देखेगा ना यहाँ पे, तो NAC, ठीक है, ALA, ये सब मोडाफिल वगैरह. यार मोडाफिनल के साथ मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है जब मैं CS फाइनल्स दे रहा था और उसके बाद थोड़ा टाइम कोलंबिया में और फिर थोड़ा टाइम कोलंबिया में भी किया. बट मेरे को अब जरूरत नहीं है यार. मतलब मैं ना I don't put myself in situations जहां मेरे को रट्टा मारना पड़े. मेरे को CA के टाइम रट्टा मारना पड़ता था, तभी मेरे को CA पसंद नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया ना वो अपने में एक मोनोपोली गेम है जिसके अपने रूल्स हैं. कोई फर्स्ट प्रिंसिपल एप्लीकेशन मेरे को दिखती नहीं थी खास. तो वो रट्टे वाले के लिए मैंने कभी-कभी यूज किए हैं, बट आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट एनीमोर. वो वाले न्यूट्रोपिक्स की बात नहीं कर रहा मैं. तो अब क्या, अब बस फास्टिंग और नो शुगर वाला और नेचुरल फॉलो कर रहा हूं. हाँ, और न्यूट्रोपिक्स वंस इन अ व्हाइल मैं एक्सपेरिमेंट कर लूंगा विद अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रोपिक्स. मैं जैसे मान ले निकोटीन है, वंस इन अ व्हाइल मैं पहले आई यूज्ड टू यूज निकोटीन फॉर अ व्हाइल वेपिंग टाइम तक. फिर मैंने निकोटीन छोड़ दिया सिंस द लॉकडाउन. नो आई बैरली हैड निकोटीन. और अब मैं वंस इन अ व्हाइल खरीद लूंगा कभी-कभी, ठीक है. निकोटीन पैचेस यूज कर लूंगा वंस इन अ व्हाइल कभी-कभी. बट मेरा मेजर फोकस, तो सीन क्या था, परवीर और मैं वी वर बोथ इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग which was thinking about human potential, blah blah blah, ABC, XYZ. और हमारे routes ना eventually अलग-अलग हो गए. He took the more biological, physiological route, biohacking के route. और मैं psychological, philosophical निकल गया. तो हमारे differences उस sense में determinism को लेके differences होंगे, ठीक है. उस sense में हमारे
हमारे ethical differences बन जाएंगे, ठीक है, because वो world view different हो गया. तो अभी भी वहाँ पे मुक्काबाजी करने में अभी भी बहुत मजा आता है. I still have a lot of fun talking to him. But I can imagine the conversation you two have. Bro, you have, let me just say that, bro. There has never been, if this clip ever comes out, I'll make sure I put it up on my Instagram and tag him. I will probably never have more fruitful conversations than I did with him. What an amazing catalyst to my career he has been. All right. Then what type of biohacking would you prefer? For example, mood swing होता है. लोग usually मेरे को बोलते हैं मोटा पे ले ले, ये ले ले, वो ले ले. तो अभी आपने बोला, आप क्या प्रकार का mood swing है? आपको जो आज काम करना ही नहीं है, Instagram पे वीडियो बनाना ही नहीं है, तो क्या करते हो आप? तो नहीं बनाऊंगा मैं भाई, मेरा राउट है ना. हाँ, मेरा राउट इज मोर टाउ, नो, मेरा राउट इज मोर टाउ. मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं, फिर मैं किसी के स्केड्यूल पे चला जाऊं, अपने स्केड्यूल पे चला जाऊं. The whole point of Fight Club as a film is that escape the big daddies of this world to become your own big daddy. So you eventually, वो शुरू कैसे होती है कि we are just nameless, faceless people in the consumer capitalist culture, और वो जब half time के बाद जब picture start होती है तो क्या कह रहा होता है, we're the all singing, all dancing crap of this world. But you again go to the same facelessness, right? So the point being कि if I don't want to make a video, I don't want to make a video. I use that opportunity to introspect. What is it about my creativity that only functions in a limited amount of time? तो मैं उसको optimize कैसे कर सकता हूँ, right? तो for instance, कभी-कभी मेरे को I will have creative blocks. Interesting. Yeah. जब मेरे को creative blocks होंगे, मैंने एक नया तरीका देखा है, भाई cleaning और सारे redundant काम जो है ना, वो करने शुरू कर दो और unconscious कुछ consume करते रहो जो तुम्हें पसंद है. So I'll put on a podcast and I'll start doing laundry, I'll start cleaning the house, I'll start doing all the redundant work that should have been done a while ago. उसमें अपने आप creativity spark up कर जाती है कुछ ना कुछ. I give myself a break. I allow myself to get into conversations with people I would not. I try to explain a very smart idea to a very uninterested friend. I try to go work out. तो mood swings तो it's an everyday thing. You cannot avoid that. You are feeling good right now, you feel bad in a minute. क्या करें? कुछ नहीं. Let that pass. It's temporary. वो function है तुम्हारे experience का, कुछ experience करना. तो मैं उसको ऐसे process करता हूँ. But तो जैसे यार वर्कआउट हो गया, बायो ये कोल्ड शावर्स हो गए, ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ बायो हैकिंग तू इमेजिन कर सकता है कि मैं बहुत रेडिली खुद को इन्वेस्ट कर लेता हूँ मूड स्विंग्स की वजह से. और अगर मैं आई डोंट यूजुअली रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज. द पॉइंट इज पहले इंटरनली फिगर आउट कर लो, फिर नहीं हो रहा तो खुशी खुशी हम प्रवीर के पास चले जाते हैं, वो कुछ घोटाला बना के दे देता है, हम पी लेते हैं. That's a blessing. It's a blessing to have such a friend. जिसको सब पता हो ये सब. भाई वो बंदा ना बहुत फाड़ है, ठीक है. मैं शायद तो पता है क्या कहता है, एक बार मेरे पास आया, कहता है सुन तेरे को कभी एड्स हो जाए ना तो मेरे को बता दियो. मैंने बोला तू वो भी इलाज कर देगा. हाँ टेंशन. मैंने बोला तू मेरा डॉक्टर बन पहले तो उसका सीन बहुत सॉलिड है ब्रो. मतलब उसने ही इज रियली गिवन अ शिट. और मैं बता रहा हूँ, इफ मैं उसको आई वाज टीचिंग हिम कंटेंट क्रिएशन अभी कुछ लास्ट टाइम जब मिले थे, मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है यार, लाइक स्टॉप fiddling around with a company, start making content. You're made for this. So you will see him in the content space soon enough too. Awesome. All right, so coming back to the next question, you mentioned you don't care about what other people think of you, right? Go ahead. तो क्या मतलब उसका कोई limitation है कि is it absolute that कुछ भी करोगे you don't care? I'm a pragmatist, bro. I'm a pragmatist. I'll be real. देख ऐसा नहीं है. Okay. मैं एक रिसीवर और एक प्रोसेसर हूँ. मेरे पास एक स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन ही आ सकती है. उस एक स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन से मैं एक अमाउंट ऑफ कंक्लूजन ही बना सकता हूँ. अब अगर मेरे पास डेटा बायस्ड है तो मेरा कंक्लूजन बायस्ड है, और मेरा डेटा मेरे को लेके हमेशा बायस्ड है. ये बात हम सब इंट्यूटिवली समझते हैं. तो the reason why we seek people's validation is to make sure what I think about myself is correct, because you are shooting in the dark about who you are, right? But what people forget in this process, because they don't realize this is what is happening, is that they need to make sure the feedback loops are tight and strong. Are people you want to take feedback from. So I have those feedback loops sorted. Those are my friends. Those are some part of my audience, some part of my family, blah 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 blah, people around me. उसके अलावा तू बोलता रहता है जो बोलना है. ठीक है. तो मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ, तुम्हें पता नहीं है, you are such a blessing for me in disguise. मैं I can say whatever the fuck I want on my socials, and you will still be like, प्रखर तो बढ़िया बंदा है.
तो that's the deal. I know whose opinion to care about. मैं किसी और के, तू मेरे को बोलेगा ना प्रखर तू बहुत महान आदमी है, मेरे को ना तेरे कॉम्प्लीमेंट से फर्क पड़ता है ना क्रिटिसिज्म से फर्क पड़ता है, पर मेरे को मेरा दोस्त रितिन बोलेगा या प्रवीर बोलेगा कि प्रखर इस वीडियो में तू ये कर सकता है, मैं उस फीडबैक को लूंगा, घर लेके जाऊंगा। मेरे पापा और मेरी आज भी we get into so many issues about the kind of content, the quality of my language and whatnot. तो मैं लेता हूँ because I care about his opinion even though I disagree all the time. I make sure he tells me what he has to tell me. ठीक है, लड़ाइयाँ भी होती हैं उसमें, but I make sure he has to tell me what he has to tell me, है ना? तो मैं but if somebody else does that, ठीक है, मतलब it is feedback. मैं जो भीड़ है ना, जो भीड़ है, majority जिसके लिए लोग फिक्र करते हैं, उसमें सिर्फ पैटर्न्स देखो मोटे वैरायटी के, जैसे राहुल गांधी को पैटर्न देखने चाहिए, जैसे कांग्रेस को पैटर्न, समझ रहे हो कि वो मोटा पैटर्न है, सब एक तरीके से ही कह रहे हैं। मेरे को ना बहुत टाइम से लोग ये कहते हैं प्रखर तू एरोगेंट है, बहुत टाइम से। तो मैंने इस चीज पे अपनी लाइफ में कई बार विचार किया, क्योंकि लोग कह रहे हैं और मेरे को नहीं पता, हो सकता मैं कैसे बता दूं कि मैं हूं कि नहीं। मेरे पास तो एक ही रिसीवर है, मैं तो अपने लिए बहुत भला आदमी, है ना? तो वो जब तब ऐसा नहीं था कि मेरे पापा ने मेरे को आके बोला या रितिन ने मेरे को प्रवीर ने आके बोला तू एरोगेंट है, तब बहुत सारे लोग भीड़ में बोल रहे थे एक साथ, एक ही फ्रेमिंग। तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करके देख लिया। समझ रहे मेरी बात को भाई? मैं तो इतना फ्लिप हूँ। मेरे को मैं एक बार ही मेरे साथ ये हुआ था, चल इसी पे तेरे को एक एनेक्डोट देता हूँ। मेरे को एक बार एक लड़की ने मजाक में बोला तू बाय तो नहीं है, बायसेक्सुअल। भाई मैंने 1-1.5 महीना विचार किया इस बात। मैंने बोला मेरे को तो पता नहीं उसका, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, मेरे को तो नहीं पता। तो मैं तो फीडबैक इस लेवल पे भी ले लेता हूँ, क्योंकि यार वो मेरी दोस्ती, मैं उसकी फीडबैक की रिस्पेक्ट करता ना। मैंने बोला अच्छा, फिर उसने मेरे को बोला मैं तो तेरी ले रही थी। मैंने बोला 1.5 महीने से छतों पे घूम रहा हूँ, रातों भर सोच रहा हूँ मैं कि मैं कहीं बायसेक्सुअल तो नहीं हूँ। पहले बता देती, मेरी टेंशन बच जाती। तो मेरी लाइफ, मैं तो उसको इस तरीके से प्रोसेस करता हूँ। मेरे को अप्रूवल वैलिडेशन नहीं चाहिए, मेरे को फीडबैक चाहिए, और स्पेसिफिक लोगों से फीडबैक चाहिए। Correct. So, do you crave attention? Do you think? First of all, do you think you are arrogant? नहीं यार, I don't think I'm arrogant. I think I've learned to understand. I've come to understand. I think लोगों को लगता है आप arrogant हो because आप इतने खुले, मतलब अभी आप मेरे से पहले बार मिल रहे हो, बड़ा इतने खुले से, इतने ओपननेस से बात कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये इसको मेरी फिगर ही नहीं है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इसके बारे में क्या सोचूंगा, उसकी वजह से इनको लगता है कि एरोगेंस है। I don't think that's हो सकता है, बट ये बड़ी सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशन है, तो मैं थोड़ा रिलक्टेंट रहता हूँ सेल्फ सर्विंग एक्सप्लेनेशंस एक्सेप्ट करने में, है ना? बट हो सकता है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता यार, मेरे को लगता है कि मैंने ना, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट मी। There is nothing special about knowledge. There is nothing special about looking good. There is nothing special about money. There is nothing special about any of those things. There is nothing special about these things that we crave. तो मेरे लिए, अगर मैं तेरा इस बात पे मजाक उड़ाता हूँ, तेरा लास्ट नेम क्या है? शुक्ला क्या होते हैं? पंडित होते हैं। हाँ, पंडित ही होते हैं, गुजराती हैं। हाँ, अगर मैं तेरा मजाक उड़ाऊं गुजराती होने पे, तो मैं इसलिए नहीं उड़ा रहा क्योंकि मैं कहीं और का हूँ, और मैं इसलिए उड़ा रहा हूँ क्योंकि भाई इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मौज मारो। बिल्कुल, ठीक है। तो it is I don't think there is anything special about me यार। मतलब what is unique about me is कि मेरी एक जिद थी, और वो जिद ढंग की जगह निकला है, कईयों की नहीं निकलती है। ठीक है, तो एरोगेंट तो मैं नहीं हूं, बट अटेंशन वाले इस पे भी मेरे पे बहुत इल्जाम लगे हैं लाइफ में। मेरे को एक बार किसी ने मुंह पे बोला था कि तेरे को तो सिर्फ साले अटेंशन चाहिए। मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं भाई, मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं। मेरे को मेरी सारी जिंदगी एक ना दूसरे फॉर्म में मजाक भी उड़ा देते हैं। मैंने इस पे बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे को अटेंशन चाहिए। अच्छा, मेरे को अटेंशन चाहिए, किस चीज की अटेंशन चाहिए? बैठ गया मैं अकेले सोचने, क्या चाहिए मेरे को अटेंशन के नाम पे। ठीक है, और यार मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए भाई, और मेरे को लगता है मेरी इंडिपेंडेंस सबसे जल्दी आ जाएगी अटेंशन ग्रैब करके लोगों की, क्योंकि वहां से पैसा आ जाएगा। मेरे को ना इंस्टीट्यूशनल बकचोदी में नहीं फंसना है, कॉर्पोरेट लैडर में नहीं फंसना है। मेरे को मंडे टू फ्राइडे किसी और के शेड्यूल पे नहीं रहना, मैं वो नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना? और मेरे को पता है कि मैं अटेंशन को नॉट जस्ट दैट आई कैन मैनेज इट काइंड ऑफ फाइन, बट आल्सो दैट आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू से, इफ नॉट important. I have something interesting, important to me, interesting to at least hopefully the potential audience. Yeah. So I'm like, why not go with attention and see where it takes you? But to say that this could not have been a budding desire for attention back in the day, I cannot say. Maybe it was. And to say that it has, to say that desire for recognition, which is a Hegelian concept, I don't know if you've read Hegel,
The fact that consciousness arises from desire for recognition, master slave concept cover किया था मैंने एक वीडियो में, लाइव वीडियो में. सबको है, that is everybody craves some amount of recognition from whoever they think are cool. वो होता ही होता है. हाँ, please. तो इसी पे now if you're looking for more attention, obviously you're scaling your Instagram, YouTube and all that. In a way you're monetizing your attention, right? अभी आप monetize करोगे, YouTube से पैसा आएगा. Then it's back to that road, Arnab Goswami wala या Ravish Kumar wala. Don't listen to anybody who is monetizing it to your attention, yeah, to the viewership. So how do you defend yourself in that? Good question. I appreciate it. I hope I do not sell out. You hope? I hope I do not sell out. I'm starting with a very transparent value structure. I'm making sure I don't say stupid things. I'm making sure I am careful about only the truths that I believe in are said from my channel. I hope people find it in them to trust me, because मेरे को लगता है हम लोग आज की डेट में faith currency को बहुत underrate करते हैं. So I don't signal anything that is not true to me, and I hope people find that authenticity. And that is something I don't want to do even at the cost of money. मेरे को bro, I had an offer कुछ time पहले. I'm not going to name anybody. It was a sizable offer. More money than I'd ever seen, but I could not say the word sex, fuck, or any of those things. Psychedelics, I could not talk about those. मैंने मना कर दिया. I hope अगर मैं किसी चीज के लिए खड़ा हो सकता हूँ लाइफ में, मैं सच के लिए खड़ा हो सकता हूँ. But मेरे को नहीं पता कि उसमें obstacles क्या आते हैं. मेरे को नहीं पता कि मेरी भूख कितनी है. मेरे को नहीं लगता मेरी भूख बहुत ज्यादा है. मैंने पैसा देखा है लाइफ में. मेरे पापा ने बहुत मेहनत करी है. तो I don't plan on being a sellout. And I hope I don't be a sellout. मैं सच बोलते हुए देखना चाहता हूँ. If Prakhar plays Prakhar, where how far can this go? तो मेरे लिए bro, this uncertainty is real, because I don't have an existing model. I don't want to play by the ad model. यार मैं तो पता है मेरी टीम ने भी ads निकाले हैं YouTube पे. I was so against it. I was like मत करो यार, don't do it. ठीक है, तो मैं I will try. तूने मेरा कोर्स खरीदा है? Did you buy my course? ठीक है, मतलब मैंने कोर्स बेच रहा था. मेरे को पता है वो जो कोर्स बेचते हैं वो लोग स्कैम ही होते हैं जो लोग बेचते हैं. बट मैं कोर्स में वैल्यू दूंगा. मैंने बोला लेकिन मैं कोर्स में वैल्यू दूंगा. द पॉइंट इज मैं सच बोल रहा हूँ. मैं कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ सामने, बट तुम पीछे इंसान ही मिलेगा तुम्हें 100%, और कुछ नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरे को नहीं फर्क पड़ता जीतने से हारने से. एक बंदा अगर सच के लिए खड़ा हो सकता है ना, एक बंदा अगर स्टेबिलिटी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी के लिए खड़ा हो सकता है ना, बहुत है. मेरे पास I had nobody like this to look up to in India, or for that matter anywhere for myself. मेरी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक तो मेंटर्स एक्सेप्ट किए नहीं, और दूसरा मेरे को मेंटर्स मेरे को मिला नहीं. तो that is what I'm trying to do for people. I'm trying to give them clean, fully developed ideas to work with. So what I have used in people like Be Biceps, like he also says the same कि यार तुम्हें मेरे से ट्रूथ मिलेगा, तुम्हें मेरे से सच्चाई मिलेगी, एंड सेल्फ हेल्प, सेल्फ ग्रोथ, खुद को ग्रो करो वगैरह वगैरह. बट एट द सेम टाइम हिज लाइफ इज अराउंड सोशल मीडिया. उसका मोनेटाइज ही है पूरा, हर चीज. मॉन्की एंटरटेनमेंट हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, जो भी हो गया. उसके ऊपर, उस जैसे बंदे के ऊपर क्या आपका व्यू है? Given that I do not understand how Prakhar scales, hedge what I say about Ranveer from the fact that I do not have privilege of hindsight. मेरे को नहीं पता दुनिया कैसी दिखती है जब प्रखर 10 से 100 और 100 से 200 पे आता है ना? I think Ranveer's content is abhorrent. I think and this is me speaking as a consumer, not as a producer, don't get me wrong. This is not Prakhar ke pravachan speaking, this is Prakhar speaking. I think if I was a 17, 18, 19-year-old and if I was watching his content, I would feel betrayed. I think it could have something to do with the fact that he wants a scaled business, and that scaled business is only possible if he behaves the way he's behaving. And so hedge me against that, but I don't like his content. Some of his podcast, मतलब podcast सुन लेता हूँ, अच्छे ऐसा नहीं है, बड़े relatable podcast है और बड़े अच्छे guests के साथ हैं. मैंने सुने भी नहीं है, but I still have an appreciation for that. But जो limited मैंने उसकी videos देखी है ना bro, वो इतनी hollow है कि आदमी एक बहुत ही मीठे झूठ में जाके बस जाता है और सच की तलाश छोड़ देता है. और मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम है. मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने सपोज एक आइडिया है 1 to 10 तक का एक आइडिया है, तुमने 2 तक कंज्यूम कर लिया है, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया 2 पे रुक जाओ, उससे प्रॉब्लम है. सो व्हेन ही सेज कि लोगों से लड़कियों को ऐसे पटाएं या व्हाटएवर फकिंग बुलशिट दैट ही डज, इतने हाफ एस्ड आइडियाज होते हैं ना वो, कि मेरा दिल बैठ जाता है. मैं कहता हूँ यार ये लोग सुन के घर चले जाते हैं.
ठीक है, तो बिकॉज उसके जैसे मैंने और लोग भी सुने हैं और मैं उनके आइडियाज लेके घर बैठ गया। देख पीटरसन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, प्रखर के साथ भी सेम प्रॉब्लम होगी, बट पीटरसन एटलीस्ट 8 या 9 ऑफर कर रहा था, प्रखर शायद 6 और 7 ऑफर कर दे। किस्मत अच्छी रही प्रखर की तो शायद प्रखर 8 और 9 भी ऑफर कर दे ऑफ द 10। बट तभी मैं इंसिस्ट करता हूँ मेरे सुनने पे चुप मत बैठो, उसके आगे सोचो मेरे दोस्त, मेरे से डिसएग्री करो, देखा मैंने, क्योंकि तुम्हारे मेजॉरिटी सच अपने हैं। एक कोर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा, उसके बियॉन्ड के सारे सच सब्जेक्टिव कंटेक्चुअल है, वो ढूंढो, वो ढूंढो। और ये और अच्छा इसीलिए शायद मेरी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, क्योंकि आई डोंट वाउच फॉर पर्टिकुलर आइडियाज, आई वाउच फॉर अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, एंड पीपल डोंट लाइक टू हियर दैट। यू डोंट लाइक टू हियर दैट यू प्रखर के पास आ भी गए, 20 मिनट सुन भी लिया तो भी प्रखर क्या कह रहा है, जाओ अपनी मरवाओ, फिर समझ में आएगा, है ना। बट सच यही है दोस्त, और कुछ सच नहीं है, और सब झूठ है, और सब झूठ है, और सब बकवास नकली फर्जी है। जो आदमी तुम्हें बोल रहा है ना कि तुम दिमाग के साथ और पॉजिटिविटी, यार कोई चीज लाइफ में, मेरे भाई रणवीर का मेजॉरिटी कंटेंट पॉजिटिव साइकोलॉजी के अराउंड बेस्ड है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का बिग डैडी है स्कॉट बैरी कॉफमैन, ह्यूमनिस्टिक पॉजिटिव साइकोलॉजी का, ह्यूमनिस्टिक कहता है बट पॉजिटिव है मोस्टली वो, ठीक है। आई हैड हिम ऑन माय पॉडकास्ट, मेरा प्रोफेसर था, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द जेंटलमैन, ब्रिलियंट स्टफ, गुड साइंस। I sat with bigger psychological giants than Scott too. And matlab, no offense to him, but I've just been exposed to brilliant people here at Columbia. And one of the most interesting things I heard in against positive psychology was that there is a flaw in the premise that decisions can only be positive. All decisions are trade-offs. All decisions. All of them. So if you're saying you can make your life positive, so and so, so and so, so and so, no. You can. तुम्हारी life शांत हो सकती है, peaceful हो सकती है, and that's good. Your life can never be a Bollywood film. So stop selling that lie. And I mean that for Bollywood, I mean that for traditional media, and I mean that for dishonest content creators. And this is me as a consumer, not me as a producer. Please, मैं अर्नब से इसलिए नाराज नहीं हूँ because अर्नब मेरा competition है। और क्यों अर्नब मेरा competition है भी नहीं, मैं अर्नब से इसलिए नाराज हूँ भाई क्योंकि मैं तेरे पे भरोसा करता था यार। मैं रणवीर से इसलिए नाराज हूँ भाई क्योंकि मैं तेरा कंटेंट अच्छा देखना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं देखना, श्वेताब ने मेरे साथ पता क्या करा, पता नहीं श्वेताब जितना मेरे को लगता है इज एन ऑनेस्ट फेलो एंड व्हाट नॉट, और हमारी अच्छी दोस्ती भी है, बट वो कहता है यार मैं चाहता हूँ तू बड़ा हो, मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं है क्योंकि कोई तो होगा जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ, और मैं रणवीर के लिए वो चाहता हूँ। इवन दो मेरे से स्टैचर में बहुत बड़ा है, ही हैज अ लॉट मोर फॉलोइंग एंड आई रिस्पेक्ट दैट, ही हैज बिल्ट अ करियर फॉर हिमसेल्फ, अ वेरी ब्रिलियंट करियर जिसके में 0.1% 2% पे भी नहीं, बट काश तू अच्छे गेम खेल रहा होता, तेरे से बात करने में और भी मजा आता। Will you be friends with him if he texts you? I don't think he will. I think I will end up texting him, and I think him and I personally will make friends. Personally, yes, but we will never agree. और हो सकता है that turns out because यार देख personality wise बात करें ना, उसकी personality अच्छी है, right? He can communicate, he can talk, and I think there is a natural magnetism when there's two. Actually, I may be wrong, but मेरे को लगता है we will be friends from the limited data you have. I think we'll be friends in real life. If at all it ever came down to that. Got it. So I think all your advices, be it procrastination, self-help, confidence, or जो भी, it boils down to one concept कि बूंद बूंद से सागर बनता है. Start small, act small, and then it will be big, right? So what significance has this concept played in your life? All the difference. All the difference. Bro, पता है ये चीज ना prospectively लोग realize नहीं करते. The difference between the formula for success and actual success is that it sounds too easy in words. है ना? मैं तेरे को बोल दूं छोटा छोटा कर क्या करूं, but fact of the matter is छोटा छोटा कर, अपने लिए ढूंढ तेरा छोटा क्या है। मेरा छोटा एक टाइम पे अपने पापा को ये बोलना था कि मेरे को सीए नहीं करनी, छोटा बट सिग्निफिकेंट सच, छोटा बट सिग्निफिकेंट एक्शन, वहां से चालू किए। फिर पापा को ये बोल पाना, पापा मैं तो कंटेंट करूंगा, मैं तो बकचोदी करूंगा ऑनलाइन, समझ रहे हो? एक ट्रेजेक्टरी दिखा रहा हूं मैं। तो दिस आइडिया दैट एवरीथिंग इज मोमेंटम इज रियल बिकॉज योर न्यूरोबायोलॉजी, योर क्या कहते हैं उसे, न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी वर्क्स ऑन मोमेंटम, इट वर्क्स ऑन अ स्टैटिक मेमोरी, इट बिल्ड्स अपॉन दैट मेमोरी, एंड सो in the roughest sense of the word, because ये बड़े complicated subjects हैं, if you incremental तरीके से अगर तुम काम करोगे, you will get a lot done with respect to self work. छोटे सच बोलने शुरू करो, छोटी मेहनत करनी शुरू करो, छोटे दर्द लेने शुरू करो, and that will compound over time as well.
तुम यार तुम्हारा देख पता है क्या होता है उस प्रोसेस में, पहले तो ये रेस करता है 10 कॉस्ट में से मैं 2 कॉस्ट ले रहा हूँ, आज मैं ये 2 कॉस्ट लेना चाहता हूँ, बाकी 10 लेना नहीं चाहता, 8 उनको डंप करेगा, फिर तू 2 पे डबल डाउन करेगा, 2 पे डबल डाउन करेगा उसका, और तेरी बैंडविड्थ बढ़ेगी वो कॉस्ट ले पाने की, जितनी दर्द लेगा उतना तेरा चेंज आएगा लाइफ में, जितना तेरा चेंज आएगा होपफुली उतना तू आगे जाएगा लाइफ में। तो वो सारा प्रोसेस इज पिकिंग योर बैटल्स एंड देन कमिटिंग टू देम एंड स्टार्टिंग स्मॉल। got it. Just a little curious question मेरे को अभी आया, what do you do for a living? अभी इतना YouTube तो ये मोनेटाइज हुआ नहीं होगा, Instagram में भी ऐड के पैसे देता नहीं, तो करते क्यों? नहीं क्या मैं समझा नहीं तेरी बात। What exactly do you do for a living? जीने के लिए? Oh, I'm a student, bro. I'm a student right now. I study psychology and economics. I'm at Columbia University. Okay. So I don't do shit for a living. नहीं यार, मेरा सेमेस्टर जब मैंने यार प्रखर के प्रवचन स्टार्ट तब किया जब यहाँ कोलंबिया में सेमेस्टर ऑफलाइन हो गया, रिमोट हो गया था। उसके बाद से मैं घर पे ही बेसिकली, तो लोगों ने वो वाली मेरी साइड दुनिया की देखी नहीं है जो मैं बाहर बकचोदी मारता हूँ। जब जैसे जैसे वो मौका खुलेगा तब लोग देख पाएंगे, बट अभी मेरा 1 साल बचा है कोलंबिया में, और मैं शायद गैप लेके इंडिया आ रहा हूँ फॉर अ ईयर टू फोकस ऑन कंटेंट एंड देन गो बैक एंड फिनिश माय डिग्री। Awesome. What do you personally struggle from? Like, I'm sure you're scared of thinking, I guess. You already think a lot, and probably by consuming, itna soch ke apna, are you afraid that you will consume your own mind? I was like a couple of months ago, but somebody told me that I needed to back off from work and that helped. I was afraid I was losing my mind for a while. But wo to fir bhi fun and jokes. I think what I'm really concerned about is unknowingly backing myself up against a wall that I don't want to. For instance, selling out. मैंने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया जहाँ पे मेरे को अपनी वैल्यूज डाइल्यूट करनी पड़ रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं सच की वैल्यू डाइल्यूट नहीं करना चाहता फॉर एनीबॉडीज सेक। So my fear is that this need for truth or this need for whatever authentic Prakhar is will come in contest with his work and his career and his dreams and his imaginations, and maybe I will not. क्योंकि यार सीन ये ना, मैं people ask me for my opinion about astrology and we'll go down that road sometime, but I don't want astrology personally, not socially. मैं लोगों को advice नहीं दे रहा, अपने लिए, because I don't want a story removing the uncertainty from my future. I don't want a framework for my future. I'll figure it out as I go. How do you separate this? How do you separate this? Because being an influencer or celebrity, it's very difficult to separate that individual personality from the concept that you become, as you have shared on your profile already. अब आपने बोल दिया कि आपको personally once you understand that once you understand that there is the 90% of your iceberg about what you think is underwater and it is full of contradictions and you do not know what is right or wrong and you are still struggling to figure stuff out and some stuff work for you by chance, and once you understand yourself truly deeply, what you realize is you understand the differences between you as an entity and your luck to whatever extent you can understand your circumstance and the general circumstance and what you can say that might work. ठीक है, तो for me this difference comes from the fact that first मेरे को पता है यार, मैं politically I can only be so sure. I cannot be sure enough to say that Modi is good or bad. मैं बोल ही नहीं सकता यार, मेरे पास है ही नहीं डेटा। तभी तो मैं अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा हूँ कि मेरे को वो डेटा दे, तेरा काम है वो देना मेरे को, है ना। तो मैं कभी बोलूंगा ही नहीं स्क्रीन पे। What I can be sure of कि इंडिया की जनता 2 इलेक्शन में बोल चुकी है हमें राहुल गांधी जीतेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता ही सिर्फ वो पहली बात जिसको लेके मैं श्योर हूँ। दूसरा, जिस बात को लेके मैं जनरलाइज कर सकता हूँ और वो काम करेगी। बहुत कम चीजें होती हैं जो जनरलाइज तरीके से काम करती हैं, बाकी सब कॉन्टेक्सचुअल तरीके से काम करती हैं। तो आई हैव टू बी दैट, और उस प्रोसेस में मैं समझ जाता हूँ कि मैं लोगों को क्या बता सकता हूँ, खुद क्या फॉलो कर सकता हूँ। और जनरली जो मैं लोगों को बताता हूँ वो एक्सपेरिमेंटेड खुद के साथ फॉलो करी हुई चीजें हैं। मैं फालतू में नहीं बोलूंगा किसी को, मैं किसी को नहीं बोल रहा एनएससी लो यार जाके अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के लिए या व्हाटएवर कुछ। मेरी बात समझ रहा है? मेरे को पता है मेडिटेशन काम करेगा 100%, तो मैं उसके बारे में चिल्लाऊंगा। मेरे को पता है एजुकेशन में प्रॉब्लम है 100%, तो मैं उसके बारे में चिल्लाऊंगा। और उसके बाद हो सकता है यार मेरे पास थोड़ा कुछ हो सकता है, मेरे न्यूरॉन्स एम्पैथी कुछ उस टाइप का कोई गिफ्ट हो कि मैं समझ जाता हूँ लोगों को सुनना कैसे है वो बात, है ना। तो मैं थोड़ा then I can frame it to people's perception a little bit and maybe I don't know, but at the core of it is that idea. Right. So I know that you battled from depression I guess a year or 2 ago. So what exactly was the depression about and how did you overcome that? About not feeling good enough, about not feeling like I will ever get to the place I have to, and eventually वो होता ही है कि उस place में value भी क्या है, and then there's मेरे अभी effort में value भी क्या है और किसी भी चीज में value क्या है. That was the disease. And how did you overcome that?
ब्रो पहले मैं विपासना गया, मतलब विपासना मैंने ना और 2-4 महीने पहले साइन अप कर रखी थी डिप्रेशन हिट करने से, बट अराउंड द टाइम इट वाज जून मई में मेरे सेमेस्टर खत्म हुआ लास्ट ईयर, एंड आई हैड अ ब्रेक फॉर 7 days बिफोर द समर सेमेस्टर बिगन. ठीक है, मेरा जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ, आई रिमेंबर कॉलिंग माय मॉम, लाइक मेरी लाइफ मीनिंगलेस है बॉस, आई डोंट नो व्हाट टू डू. ठीक है, शी इज लाइक नहीं अभी सेमेस्टर तुम्हारा चालू हो जाएगा, यू स्टार्ट रीडिंग ब्ला 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 एक्सप्रेस एबीसी. एंड आई वाज लाइक ठीक है. सेमेस्टर में आई कुड barely focus in class. मैं पॉलिटिकल फिलॉसफी का क्लास ले रहा था, I could barely focus in that class. I was lying to my professor that I was doing all these things because I just wasn't there. I was sometimes I tell him too मैं बहुत depressed हूँ, this that. मैंने बड़ी मुश्किल से वो क्लास निकाली, and throughout this time I taught myself up कि Vipassana is going to be that break that solves the problem. Yeah. ठीक, तो मैं विपासना गया, एंड उस टाइम ना the girl that I was seeing back when, वो she was in China, वो वहाँ पे डांस सिखा रही थी, she had moved to China. ठीक है, तो I was in touch with her. I was supposed to meet her right after Vipassana in Chicago. ठीक है, तो मैं विपासना गया और 9-10 दिन बहुत अच्छे निकले. But of course, I haven't had the time to interact with real world to see what I feel about the real world. In the personal space, I was very happy and very content and whatnot. I made great friends. I learned so many things. There was so much to talk about. I just could not wait. I go out and I'm driving from where I was in Wisconsin state में था मैं, Menominee नाम की जगह पे, Menominee, और I was going to Madison, Wisconsin, which is like जहाँ से मेरे को बस मिली थी शिकागो जाने के लिए. So I was driving with 2 guys, Indian guys. Oh, one Indian, one American, but मेरे ख्याल Italian origin. And उस रास्ते में ना, the Indian guy started talking about how his mother had died of cancer, and how he felt betrayed by the fact that his mother left him without preparing him for the real world. And this is a very real dark emotion to be angry at your mother's death because of cancer. He had finally picked up the courage to ask that question to people once he was in the car, and I started helping him. I started helping him process it. उसके चेहरे पे ना visible signs of verbal processing थे. वो ऐसे, like you could see that, and I was like, wow. And I realized how much I liked doing that. ठीक है, but I did not pay attention to it. I did not pay attention to the fact that I liked helping him. I was like, yeah, this was a novel sight. Towards the very end of a drive, which was like a 3-hour drive, they started talking about me, and I started telling them about my depression, because we'd gone through the rounds of everybody talking, and that was my turn. And so I was telling them about how I don't feel good enough, and they were like, "Tera dimag kharab hai, tera dimag kharab hai, tera dimag kharab hai. You're so blah 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 good, this that. You're doing so well. You're at Columbia, blah blah blah." And I was like, तुम्हें क्या पता? मेरे दिमाग में रीजन आ रहा है, इनके तो सपने भी बड़े नहीं हैं. ये मेरे को क्या बता रहे हैं? I relate to this. Yeah. Okay. Right? इनके तो सपने भी बड़े नहीं हैं. ये मेरे को क्या बता रहे हैं? Oh, this is not just arrogance. This is like I want to be objective. No, क्या पता इनके सपने बड़े ना हो, मैं इनकी बात मान लूँ आज. So I just want to be arrogance भी नहीं थी. But एक सेंस में तू कह सकता है. मैं शिकागो जाता हूँ, 1-2 दिन ठीक निकलते हैं, तीसरे दिन मैं सुबह अपने होटल के फ्लोर पे रो रहा हूँ फिर से, that I'm not good enough, that all of this is meaningless. And I call up the same guy, not the Indian one, the other guy. I call him up, and I was like, bro. And then this time I really listened to him. I really listened to him this time. And this time when I listened to him, it hits me. I was like, you have to be happy with what you have. And this was because I had equipped myself with the tools of being in the present. Vipassana ke through, you know? I was like, अच्छा, you have to be happy with what you have. Fuck. अच्छा, एक लेवल का झूठ है मीनिंग में, मतलब उसका कोई इनहेरेंट पर्पस नहीं, मेरे को मानना वो अच्छा. तो that is what started happening. फिर ना, I gave myself a break. मैं इंडिया आ गया, 1 महीना घूमा मैं इंडिया में, मौज करी, मैंने कुछ काम नहीं किया खास. And that allowed me to see things in perspective. That allowed me to understand that what I truly enjoyed was not working. It was being lost in the moment. And if work was being lost in the moment, then well, hell yeah. Then I started playing this game for the sake of playing this game, not for winning. And since then, winning has become easier. Yeah. Cool, interesting. I have 3 more questions left, and one of them is related to your audience. How are you planning to closely engage with your audience as it scales up? अभी तो मैंने आपको 1 मिनट लगा था, आपने रिप्लाई कर दिया. आपको फेसबुक वाला इससे भी ज़्यादा फॉलोइंग 3,500-4,000 है. So it's possible right now to engage directly with. बट जैसे आप स्केल अप करोगे, एंड आई नो आपने भी एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट लिया था, मैं नाम भूल गया था, बिकॉज़ आपने 1 घंटा बात करी इस पे. बट हाउ डू यू पर्सनली प्लान ऑन वेदांत के साथ एंगेजिंग? या वेदांत, यार देख, मेरे फ्यूचर प्लान्स कुछ ऐसे हैं. अभी तो मैंने एक जनरलाइज्ड कन्वर्सेशन कोर्स निकाली है, डीपर्सनलाइज्ड लेवल पे प्रकार से कन्वर्सेशन सीख लो. फिर मैं मेंटरशिप्स खोल दूंगा, मैं वेबिनार्स खोल दूंगा. The point being that I would have to engage at the end of the day, I cannot interact with 1 million people directly. If at all I ever make 1 million, है ना?
वो तो कोई बात नहीं है, बट एट एनी गिवन रेट अगर तुमको ही लगता रहा प्रखर सच बोल रहा है, जो कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ प्रखर सच बोलता रहेगा, मैं बंद कर दूंगा अगर मेरे को सच ना बोलना, अगर इफ इट कम्स एट ऑल मैं नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है, झूठ बोल के नहीं पैसे कमाने। तो तुम लोग एंगेज रहोगे उस लेवल पे जहां पे तुम मेरे पे भरोसा करते हो, क्योंकि जो सबसे बड़ी नंबर वन मिसिंग वैल्यू दैट ऑल पीपल हु ट्राई टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन आर इज ट्रस्ट। आई मेक श्योर ट्रस्ट रिमेन्स वन, ठीक है। टू, आई विल स्टार्ट मोर पर्सनलाइज्ड लेवल पे कुछ चीजें शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मेरा एक प्लान है सून इनफ टू स्टार्ट अ गेट आउट ऑफ योर ओन वे वेबिनार सीरीज, जहां मैं 50 लोग लूंगा बस, और उनको डीपली, क्योंकि अभी तक मैंने सोल्यूशन देने शुरू नहीं करे यार चीजें, Exactly. अभी है ना, मैं वहां पे सोल्यूशन दूंगा क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट होगा उन लोगों का, और मैं वहां पे तुम्हें बताऊंगा अपने अपने रास्ते में कैसे ना है, कि अपनी गेम बढ़िया तरीके से कैसे खेली जाए। तो उस तरीके से मैं वो एंगेजमेंट ऑफर कर सकता हूँ जहां लोग मेरे से कनेक्टेड फील करें। क्योंकि यार मतलब मैं ना श्वेताब से भी यही बात कर रहा था, कहाँ पे पता नहीं, श्वेताब से मैंने प्राइवेटली बात करी थी कि यार मेरे को ना ये पसंद नहीं है ये ब्रांड वाला प्रेशर। श्वेताब मेरे को बता रहा था कि उसको जैसे ब्रांड्स होती हैं तो उनके साथ नेगोशिएशन में चिक होती है फलाना टिमका। मैंने बोला यार मेरे को ना ये बात ही नहीं पसंद, मेरे को ना मैं इससे बढ़िया तो मैं अपने बूते पे अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा पैसा कमा लूं, मोनेटाइजिंग योर ओन कंटेंट राइट, इंस्टेड ऑफ। हाँ उनकी बुक भी है, उनकी बुक भी पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ी है उनकी बुक। ऑलराइट, like okay, final question, life की 3 असली tips which everybody should take and जो आपने भी लिया। कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना सीख लो, लोगों को खुश करना, लोगों में इमोशन इंस्पायर करना सीख लो। उससे बेटर चीज तुम्हारी लाइफ में किसी चीज के लिए कभी भी तुम कोई हार्ड स्किल उसके बराबर की वैल्यू नहीं रखती। तुम्हें सब हार्ड स्किल तुम सीख जाओगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए मेजरली लाइफ में, और अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर चाहिए होता है लोगों से बात करने में। दूसरा, आप खुद को पहचानना सीख लो, और खुद को पहचानने के लिए 2 चीजें करनी जरूरी है। एक, अपने आप को घिसना जरूरी है, और दूसरा खुद से बात कर पाना जरूरी है। उस घिसने को ऑब्जर्व कर पाना जरूरी है, उसको उसके रिजल्ट और बेनिफिट और ये सब देख पाना जरूरी है। तो मेडिटेशन और एक्शन। और तीसरे एंड पे, जो वैल्यू तुम्हें प्यार से मिलती है वो कभी तुम्हें पैसे जीतने, ऊपर बढ़ने, सेक्स, नशे, इन सब चीजों से नहीं मिलेगी दोस्त। प्यार की वैल्यू रिकॉग्नाइज कर लो जेन्युइनली। एक बार अपने घर वालों के साथ बैठ के बात करके देखो कि एक दिन वो मर जाएंगे, जाके देख करके अपने। मैंने ना एक बार, मेरे को एक सपना आया था कि मेरी मम्मी चली गई। मैंने मम्मा को फोन करके बोला, मेरी बड़ी फट रही थी, मैंने बोला मम्मा मेरे को सपना आया कि आप चले गए हो, बड़ा रियल सपना था। मेरी मम्मी ने मेरे से ना बड़ी ऑनेस्टली बात करी, भाई मैं रोया थोड़ी देर, बट एक पीस आ गई, और मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ। मेरे दादाजी की तबीयत खराब है आजकल। जो मौत और प्यार का रिश्ता है ना, एक बार तुम वो समझ जाते हो भाई। एक बार अपने दोस्तों को जाके गले लगा के देख दो, तेरी जिंदगी बन जाती है, तेरे को और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। कितने करोड़ों इंडियंस अपनी लाइफ अपने दोस्तों और अपने परिवार को लेकर निछावर कर देते हैं, तुम समझ नहीं रहे उसमें कितनी पावर है प्यार में। ये 3 चीजें मैं बोलूंगा लोगों के लिए। Something definitely to think upon. All right, thank you, Prakhar, for coming to the podcast. I know मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, but I hope you enjoyed the podcast. नहीं, great questions. Thank you for pushing me to think. I really appreciate that. Sure. तू इसके अगर clips बनाएगा मेरे को भी भेजियो. I'd like to put these clips out too. It's very honest for me to do this. I really appreciate you. I hope you grow. I would suggest invest on your camera, invest on your microphone. The first thing. दूसरा, invest. Do not treat podcasting as content. Treat podcasting as networking only for now, for the next 2 or 3 years. I do that. Yeah. और अपना कंटेंट बनाना शुरू कर, because that is the only way you'll pull people into your podcast if you're a personality before and you are ready. Don't think too much. मैं अपना कंटेंट पुट आउट करता हूं, अभी just 1000 सब्सक्राइबर मैंने टच किए। हाँ, you have it already. Keep refining. Never settle. You are never right. You are probably never in your life going to be right. Keep exploring. There is always a gray area. There is always something to think. There's a superposition. There's a synthesis. There is miles to go before you sleep on the road to truth, if that is your objective. Yeah, 100%. Thank you so much, Prakhar, for coming on the podcast.